بنگلہ دیش میں عام انتخابات کا میلہ سج گیا۔ BNP جیتے گی یا جماعت اسلامی کا اتحاد؟ 12 کروڑ 76 لاکھ سے زائد ووٹرز ملک کو نئی قیادت دیں گے۔ پولنگ کا عمل جاری۔ پاکستانی وقت کے مطابق پولنگ 3:30 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد پولنگ کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی پہنچ گئی۔ پولنگ سٹیشنز کے باہر لمبی قطاریں۔ خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان BNP کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار، جماعت اسلامی کی جانب سے شفیق الرحمان مد مقابل۔ 299 نشستوں پر 50 سیاسی جماعتوں اور 249 آزاد ارکان سمیت 1981 امیدوار میدان میں۔ پارلیمنٹ میں 50 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص۔ پولنگ کے دوران عوام سے حالیہ قانون سازی کی حمایت یا مخالفت پر رائے کے لیے ریفرینڈم بھی ہو رہا ہے۔ عوامی لیگ کی رہنما شیخ حسینہ واجد کا 2024 میں تختہ الٹ گیا۔ عوامی لیگ کے امیدواروں پر الیکشن لڑنے پر پابندی۔ جین زی بنگلہ دیش کے الیکشن میں اہم کردار ادا کرنے کو تیار۔ 3 کروڑ سے زائد نوجوان ووٹرز کا کردار فیصلہ کن ہوگا۔ عام انتخابات میں جین زی کو کنگ میکر قرار دیا جانے لگا۔ مہنگائی، بے روزگاری، آزادی اظہار کے مسائل کا حل اور بھارتی اثر و رسوخ کا خاتمہ نوجوانوں کے اہم مطالبات۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق BNP اور اتحاد کو 44% سے زائد، جبکہ جماعت اسلامی اور اتحاد کو 43.9% ووٹ ملنے کا امکان۔ 1400 امیدوار پہلی بار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ 600 سے زائد امیدواروں کی عمر 44 سال یا اس سے کم ہے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے 90% پولنگ سٹیشنز پر CCTV کیمرہ نصب۔ 9 لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ امریکی صدر سے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی ملاقات۔ ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل میڈیا پر بیان میں کہتے ہیں ایران سے ممکنہ ڈیل کو ترجیح دی جائے گی۔ مذاکرات میں دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں۔ ڈیل نہیں ہوتی تو دیکھیں گے کہ مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم کو بتایا ہے کہ ایران سے ڈیل ترجیح ہے۔ پہلی بار ایران نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈیل نہ کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ ایران کو مڈ نائٹ ہیمر بمباری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ امید ہے ایران کا رویہ اس بار زیادہ ذمہ دارانہ اور معقول ہوگا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے باضابطہ طور پر امریکی صدر کے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کر لی۔ دوسری جانب امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں دوسرے طیارہ بردار بحری بیڑے کی تعیناتی کی تیاری۔ پینٹاگون کے مطابق اقدام ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ تعیناتی کا باضابطہ حکم چند گھنٹوں میں بھی جاری ہو سکتا ہے۔ منصفانہ معاہدہ ہو تو جوہری پروگرام پر ڈیل ممکن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں اپنی خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ ایران کے حقوق اور وقار پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ مشیر سپریم لیڈر علی شمخانی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران پر حملے کو جنگ کا آغاز تصور کیا جائے گا۔ ایران کی میزائل صلاحیتوں پر کوئی بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ امریکہ فوجی طاقت کی نمائش کی بجائے سنجیدگی دکھائے۔ مذاکرات کے ساتھ دھمکیاں امریکی فطرت ہے۔ بار بار کہہ چکے محدود فوجی حملہ بھی جنگ کا آغاز ہوگا۔ جنگ صرف میدان تک محدود نہیں رہے گی۔ یہ جو دہشت گرد ہیں نہ ان کا مذہب ہے نہ ان کا کوئی دین ہے، اور جو بدترین قسم کی جو بربریت ہے یہ اس سے بھی آگے ہے، اور ان کی جتنی بھی ان کی مذمت کی جائے، ان کے خلاف جتنا بھی جہاد کیا جائے وہ کم ہے۔ اس واقعے میں یوں ہوا تو پوری قوم سوگوار تھی، دکھی تھی، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس کی شدید مذمت کی۔ وزیراعظم کی ترلائی۔ اسلام آباد میں امام بارگاہ ختیجۃ الکبریٰ آمد۔ شہداء کے لواحقین اور متاثرین سے ملاقات۔ شہید اون عباس کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا سانحہ اسلام آباد پر پوری قوم سوگوار، سب کے دل دکھے ہیں۔ واقعہ تفریق پیدا کرنے کی سازش تھی۔ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کی ناپاک سازش کو ناکام بنائیں گے۔ دہشت گردوں کا کوئی دین اور مذہب نہیں۔ افواج پاکستان سمیت تمام سیکیورٹی ایجنسیاں ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں۔ شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ نوجوان اون عباس کی بہادری اور قربانی کو سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ نوجوان اون عباس نے حملہ آور کو روکا، بہت اعلیٰ درجے کی قربانی دی۔ اون عباس کو بعد از شہادت 14 اگست کو ایوارڈ سے نوازیں گے۔ شہباز
शहबाज शरीफ का उन अब्बास के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। हुकूमत खुदकुश हमले में शहीद अफराद के अहले खाना को 50-50 लाख रुपए इमदाद देगी। कराची में बलोच क्लोनी पुल के करीब इमारत की बेसमेंट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां और 2 स्नार्कल ने आग पर काबू पाया। इमारत में धुआं भर जाने से मुतादिद रिहायशियों की हालत गैर हो गई। हुकूमत का आवाम को महंगाई का झटका। महाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद। नैपरा ने फैसला जारी कर दिया। महाना 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। महाना 200 यूनिट बिजली वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स्ड चार्जेस लग गए। 100 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपए महाना फिक्स चार्जेस आयद। महाना 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। महाना 300 यूनिट तक इस्तेमाल के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपए फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। 400 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस 200 रुपए इजाफे से 400 रुपए हो गए। 500 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 100 रुपए इजाफे से फिक्स चार्जेस 500 रुपए आए। नैपरा ने सनती सार्फिन पर 101 अरब की क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी। सनती शोबे के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे सस्ती। नई सोलर पॉलिसी पर मुल्क में भौचाल। दुनिया न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन के बाद वज़ीर-ए-आज़म का नैपरा के नए रेगुलेशन के इजरा का नोटिस। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नए रेगुलेशन के इजरा पर आला सतह का खुसूसी इजलास। पावर डिवीजन को सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक फौरी नज़रसानी अपील दायर करने की हिदायत। सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा सोलर सार्फिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर ना पड़े। सोलर से मुस्तफिद होने वाले सार्फिन की तादाद 4,66,000 है। पावर डिवीजन इस हवाले से जामिया लाहे अमल तश्कील दे। नैपरा ने 2 रोज कबल नेट मॉनिटरिंग पर नया निज़ाम मुतारिफ करवाया था। यूनिट के बदले यूनिट एडजस्ट करने की सहूलत खत्म। सोलर सार्फिन को बिजली की पूरी कीमत देना होगी। अपग्रिड सोलर सार्फिन से बिजली 8 से 10 रुपए फी यूनिट खरीदेगा। जब आप ग्रिड से बिजली लेंगे तो आपको मुकम्मल रिटेल टैरिफ देना होगा। ये टैरिफ तकरीबन 50 रुपए फी यूनिट हो सकता है। मुसलसल एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए रियासत को और बलूचिस्तान के उस आम नौजवान को डिसइंटीग्रेट किया गया है और एक ऐसा फॉल्स नैरेटिव खड़ा किया गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कंप्लीटली परसेप्शंस की बुनियाद पर है, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी को इजाजत नहीं है कि वो बंदूक उठाए और मासूम लोगों का कत्ल गारत शुरू कर दे। बातचीत के लिए तैयार लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान का 2 टोक ऐलान। सरफराज भुगती का बलोचिस्तान असेंबली में इजहार ख्याल। कहा फसाद और इंतशार छोड़े, मुज़ाकरात की बात करे। कभी भी सियासी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। मजदूरों और बच्चों को कत्ल करने वालों से कोई बात नहीं होगी। क्या जो लाहौर में डेवलपमेंट हुई वो ही गुजरावाला में है? क्या जो डेवलपमेंट पेशावर में है वो ही डेरा इस्माइल खान में है? क्या DI खान के लोग अब बंदूक उठा ले और तशद्दुद शुरू कर दे? किसी को भी बंदूक उठाकर मासूम लोगों के कत्ल की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारतीय प्रॉक्सिस का बलोचिस्तान और ख्वारिज का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान के लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। बलोचिस्तान असेंबली में दहशतगर्दी वाकयात से मुतालिक मजहबी मुज़म्मती करारदाद मंजूर। 31 जनवरी के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को खराज तहसीन पेश। औरत वज़ीर आला बनकर मर्दों को टफ टाइम दे सकती है। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहती हैं औरत मुल्क, सूबा और वजारत भी चला सकती है। औरत जंग लड़ सकती है, जहाज भी उड़ा सकती है। औरत पुलिस फोर्स और मईशियत भी चला सकती है। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का अहम किरदार है। ख़वातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात के लिए
ज्यादती केस में 72% कमी आई। पंजाब में खवातीन के खिलाफ जुराइम की शरह इंतहाई कम हो गई। कौन कहता है पाकिस्तान के लोग कानून पर अमल दरामद नहीं करते? लाहौरियों ने बसंत के तीनों दिन कानून को फॉलो करने के लिए रिकॉर्ड्स कायम किए। सुबह 5 बजे वक्त खत्म होने के बाद एक पतंग आसमान पर नजर नहीं आई। बसंत के दौरान बगैर सेफ्टी रॉड के एक मोटरसाइकिल नजर नहीं आई। लाहौरियों ने हर लिहाज से कानून पर अमल दरामद किया। वज़ीर आला ने खेलता पंजाब पिंक गेम्स 2026 का इफ्तिताह कर दिया। पिंक गेम्स के खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए बतौर इनाम देने का ऐलान। खिलाड़ी को हर मुमकिन सहूलतों की फ्राहमी की यकीन दहानी। जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं। जंग जैसा कोई भी इक़दाम पूरे खित्ते का अमन तबाह कर सकता है। पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात का हामी रहा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का ईरान के कौमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब कहा, खित्ते में देर पा अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। मुश्तरका सरहदों को तिजारत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना होगा। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान दुनिया में अमन के क़याम के किरदार के लिए हमेशा तैयार रहा है। पड़ोसी बरादर मुल्क ईरान की तारीख और सकाफत मुश्तरका है। फारसी कई दिहाइयों तक खित्ते की मुश्तरका जुबान रही। तकरीब के दौरान सानहा इस्लामाबाद पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुआशी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल बरकरार रखने का अज़्म का इजहार। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी नायब मुआवन वजीर खारिजा बराए जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर की मुलाकात। अमरीकी नाज़मुल अमूर नेटली बेकर भी वक्त में शामिल थी। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, इस्लाहाती एजेंडा और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। वजीर खजाना ने अमरीका के साथ तवील मुद्दती मुआशी ताउन को सराहा। पाकिस्तान का गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल बरकरार रखने के अज़्म का इजहार। अमरीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अमेरिकन बिजनेस काउंसिल से रवाबित जारी रखने की यकीन दहानी। अमेरिका ने पाकिस्तान की मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। अमरीकी हुकाम ने कहा, पॉलिसी में तसलसल से तिजारती रवाबित मजीद मजबूत होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात। पार्लिमानी वफ्द भी फैसल मुमताज राठौर के हमरा था। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल से सदर पाकिस्तान को आगाह किया गया। वफ्द ने सदर जरदारी से पार्टी मामलात पर रहनुमाई तलब की और आइंदा इक़दामात पर मुशावरत की। मुलाकात में मरहूम बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई। सदर जरदारी का मकबूजा वादी में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए कौमी यकजहती और पुख्ता मौक़िफ़ पर जोर। सिंध हुकूमत का कच्चे का 80% इलाका डाकुओं से क्लियर करवाने का दावा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार का कहना है, ऑपरेशन में 28 डाकू हलाक, 81 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। 150 के करीब जराइम पेशा अफराद ने खुद को पुलिस के हवाले किया। रियासती रिट के क़याम तक मेगा ऑपरेशन निजात बहरान पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। डाकू को जल्द ही बड़ा सरप्राइज दिया जाएगा। जो सरेंडर नहीं करेगा वो मरेगा। सदर मुमलिकत का कच्चे में क़याम अमन का ख्वाब जल्द पूरा होगा। वज़ीर आला सिंध की मुकम्मल हिमायत हासिल है। वज़ीर दाखिला सिंध का घोचकी के इलाके रवंती में कायम बंदर का भी दौरा। जिला में अमन अमान का जायजा लिया गया। पुलिस और सिंध रेंजर्स को शाबाश दी। DIG सखर और सेक्टर कमांडर रेंजर्स का अगले मोर्चों का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन सर्विलेंस और थर्मल कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठिकाने छोड़कर भागने पर मजबूर। तुर्क सदर तैयब रजब उर्दवान ने ओकन गर्ग वजीर इंसाफ नामजद कर दिया है। ओकन गर्ग की नामजदगी पर तुर्क पार्लियामेंट में अपोजिशन की हाथापाई हल्फ उठाने से रोकने की कोशिश की गई है। बतौर चीफ प्रोसिक्यूटर अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन की क़यादत की गई थी।